everyone. This is my first video and I'll be making videos like this on various topics of dentistry, and I'll be making notes like this and I'll be posting the notes in social media platforms as per the response that I'll get. Okay. And one more important thing is that I make all the notes and I get the data from the OG textbooks. For example, the diseases of the pulp I have taken. This is a topic of conservative and endodontic dentistry, and I have taken this from Grossman book. Okay, so let's get started. Diseases of the pulp. The pulp, as we know, it is a formative organ. It forms primary. It forms primary, secondary, and reparative dentine. Primary dentine is formed during the development of the tooth. Secondary dentine is formed during tooth eruption. Reparative dentine is formed in the response to stimulation as long as the odontoblast remains intact. Okay, this is you all know, I know that you all know, this is how a tooth looks when we cross it. Enamel, dentine, pulp, cementum, gingiva, bone. Okay, so there is a very funny line in Grossman's that says some pulp will die. Some pulp will die if you look crossly at them, while others can't be killed with an X. So pulp, as we know, it is a very resistant organ. Okay, it is a very resistant organ. So why does it vary from pulp to pulp? Why does it vary from pulp to pulp? Because it depends on various factors. Like for example, it depends on the nutritional supply of the pulp. It depends on the cellular activity of the pulp. It depends on the age of the pulp. It depends on metabolic and physiologic parameters. Okay. Next, I'll start my lecture with this explanation of how the caries actually progresses. As we can see, the caries has progressed from enamel through the dentine into the pulp. So what happens here? If it has reached the pulp, it has caused irreversible pulpitis, and here we can see there is already inflammatory reaction which occurs at the coronal region of the pulp. The middle and the apical, isko bhul jao abhi ke liye. The middle and the apical region are normal. So the first defense cells which comes out to defend the body is, we all know, it is polymorphonuclear leukocytes. So they surround the pulp here and they try to prevent the bacteria to get into the deeper part of the pulp tissue. And one more very important thing I would like to tell is that you can see the pulp is surrounded by the hard tissue, that is dentine. And inflammatory reaction में क्या होता है कि the pulp, it tends to expand and swell, but क्योंकि ये enclosed chamber में है, there is a very little space for the pulp to expand, swell. So all the pressure gets built up, and because of considerable inflammatory exudate accumulates and causes pain and pressure to the nerve endings, and that causes pain. Okay. Areas of necrosis develop owing to the disrupting the nutritional supply, and that causes death of the polymorphonuclear leukocytes, and that causes pus formation. If the process is less severe, the leukocytes and plasma cell, they will replace the polymorphonuclear leukocyte, and the chronic inflammatory state may be confined to the surface of the pulp. तो क्या होता है ना, आई विल टेल यू कि क्लिनिकली देखना, कुछ पेशेंट्स बोलेंगे कि मुझे बहुत दर्द था ये दांत में, बट कुछ दिन बाद वो दर्द एकदम ठीक हो गया, ठीक है, बट कुछ हफ्ते या एक महीने बाद फिर से मुझे बहुत दर्द होने लगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब दर्द था तो इन्फ्लेमेटरी वो प्राइमरी जो कोरोनल पल्प वो अफेक्टेड हुआ था, ठीक है. उसके बाद जब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जब उसकी डेथ हो गई, तो लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल उसका जगह लेके ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट को वो लोकलाइज कर दिए थे सरफेस ऑफ द पल्प में. सो उसे प्रिवेंट किया
पेनिट्रेट टू डीप पेनिट्रेशन का। तो जो पेन था वो सबसाइड हो गया, ठीक है, वो नॉर्मल हो गया था। बट कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद क्या हुआ कि जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, दे पेनिट्रेटेड डीपर इनटू द पल्प एंड दे कॉज्ड एन अक्यूट रिएक्शन मैनिफेस्टेड बाय क्लिनिकल फ्लेयर अप। ओके, इसे बोलते हैं क्लिनिकल फ्लेयर अप। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स मे बी किल्ड बट दे कॉमनली सर्वाइव, ठीक है, एंड सेट अप अ रिएक्शन इन द पेरियापाइकल रीजन बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। तो वो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो वो अक्यूट एल्वियोलर एब्सेस कर सकते हैं जिसमें बहुत मतलब दर्द होता है, सिम्टम्स होते हैं, बट या अगर वो लीजन अगर वो लेस virulent हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल रिमेन इन द रूट कैनाल एंड बाय देयर टॉक्सिन प्रोडक्ट्स दे विल ग्रेजुअली एंड क्वाइटली प्रोड्यूस chronic alveolar abscess. Okay, chronic alveolar abscess, and उसमें हम chronic alveolar abscess में we can also see there might also be visible sinus tract. ये जो एक मिनट, हाँ, ये sinus tract हम देख सकते हैं। इस sinus tract ये जो चीज़ बाहर निकला हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये this is गटा पर्चा, this is used for obturation of the root canal. तो इसमें हम यहाँ पे क्यों डालते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू ट्रेस द रूट ऑफ द टूथ, मतलब कौन से दांत से ये साइनस ट्रैक्ट हुआ है, कौन सा वाला दांत इन्फेक्टेड है, कौन सा वाला रूट से ये साइनस ट्रैक्ट हुआ है, इसे ट्रेस करने के लिए हम इसके अंदर से हम गटा पर्चा डाल के ट्रेस करते हैं। ओके, और अगर if the host body is defensive forces of the periradicular tissue is adequate enough, there might be a formation ring of granulation tissue. So granuloma वहाँ पे बन सकता है and delimit the bacteria and neutralize the toxin. In some cases, such low grade irritation, it may stimulate the epithelial crest cells to form a cyst. epithelial crest cell फिर cyst भी वो फिर बना सकता है। So like this, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा अपना लेसन स्टार्ट करने में। अभी हम बाकी सब पढ़ते हैं क्या होता है क्या नहीं हो। हाँ, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो दांत है ना, लाइक ये वाला दांत आप देख सकते हो, इट इज़ वेरी डिस्कलर्ड टूथ। तो मतलब ये नॉर्मली हम नेक्रोसिस में देख सकते हैं, पर जब पूरा पल्प नेक्रोस्ड हो जाता है तो वैसे ऐसा दिखता है। तो वाई डज इट अकर? ये वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है आपका कि वाई डज दिस डिस्कलरेशन वी सी इन अ नॉन वाइटल टूथ? तो आपका आंसर होगा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ ब्लड डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स। ये पूरा ग्रॉसवेंस से लिया हुआ है। ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट, बैक्टीरिया एंड फूड डिब्रिस इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल, इसकी वजह से ऐसा कलर दिखता है। ओके, सो हम अपना लेसन से स्टार्ट कर देते हैं। सो पहले व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पल्पल डिजीज़? पल्पल डिजीज़ के कॉजेज़ क्या होते हैं? देखिए, ये हमारा 3 तरह का हो सकता है। एक है फिजिकल, एक है केमिकल, एक है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल सबसे ज़्यादा होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया पल्पाइटिस होता है, ठीक है। तो फिजिकल में क्या हो सकता है? मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल में ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा के लिए हो सकता है, ठीक है। एट्रिशन, एब्रेशन, इरोशन, यहाँ पे एट्रिशन, एब्रेशन, इरोशन के लिए हो सकता है। क्राउन ओरिजिनेटिंग फैक्टर के लिए हो सकता है। बैरोमेट्रिक चेंजेस मतलब एक मतलब प्रेशर। ओके, आई विल टेल, मतलब आपको बताती हूँ मैं बाद में। थर्मल चेंजेस के लिए हो सकता है। जब हम टूथ प्रिपेयर करते हैं ना, तो हाई या लो स्पीड बर्स्ट से के कारण ये टूथ प्रिपरेशन से हीट जनरेट होता है, उसके वजह से पल्पल डीजेनरेशन हो सकता है। फिर एक्सोथर्मिक हीट फ्रॉम द सेटिंग ऑफ सीमेंट, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कोल्ड थ्रू डीप फिलिंग्स विदाउट प्रोटेक्टिव बेस। अगर हम प्रोटेक्टिव बेस नहीं लगाते हैं तो जो डीप जो फिलिंग करते हैं ना, उससे हम हीट कंडक्ट हो सकता है। और ड्यूरिंग पॉलिशिंग ऑफ अ रेस्टोरेशन फ्रिक्शनल हीट इज जनरेटेड, उससे भी पल्प डैमेज हो सकता है। इलेक्ट्रिकल लाइक गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट जब हम ऊपर का दांत और नीचे का दांत डिसिमिलर
मेटल से हम फिल करते हैं ना दोनों, तो उसमें गैल्वेनिक एक करंट जनरेट होता है, उसके वजह से भी हमारा पल्प डिजेनरेशन कर सकता है। ओके, और हम देखेंगे केमिकल्स में हो सकता है पॉलीएक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक मोनोमर्स, इरोशन एसिड्स। ओके, बैक्टीरियल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैक्टीरियल से ही होता है जनरली। टॉक्सिन्स associated with caries, direct invasion of pulp from caries or trauma, microbial colonization in the pulp by blood-borne microbes। ये एक मेरा स्टिकी नोट था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, MDS का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। पल्पल जो कैपिलरी प्रेशर वो कितना होता है, 14 सेंटीमीटर ऑफ H2O। नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन पल्प इज़ 10 mmHg, एंड इफ़ इट इंक्रीजेज if it is more than 35 mmHg, then irreversible changes start appearing। okay, so देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि clinical classification of diseases of pulp, ये ग्रॉसमैन से ही लिया हुआ है। so inflammatory diseases of pulp, it can be reversible, irreversible। reversible में acute, chronic, irreversible में symptomatic, asymptomatic, chronic hyperplastic pulpitis, internal resorption, okay, pulp degeneration, calcific degeneration, fibrous degeneration, pulp necrosis, pulp necrobiosis, pulp necrosis with no sign of infection, necrotic and infected pulp। ये सब के बारे में I'll be teaching you guys। okay, so pulpitis, we all know that pulpitis can be reversible or irreversible, symptomatic or asymptomatic, partial or total, infected और sterile। तो हम क्लिनिकली हम ये नहीं देख सकते कि ये पार्शियल और टोटल है, ठीक है, पार्शियल और टोटल है, ये हम क्लिनिकली नहीं देख सकते। इन्फेक्टिव और स्टेराइल है, ये भी हम नहीं देख सकते। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये सिम्टोमेटिक है कि एसिम्टोमेटिक है। So in reversible pulpitis, this is the definition right from Grossman. It says that reversible pulpitis is mild to moderate inflammatory condition of the pulp caused by noxious stimuli in which the pulp is capable of returning to the uninflamed state, followed by the removal of stimuli. So once we have removed the stimuli which had caused the inflammatory condition of the pulp will get back to its normal condition without any delay। okay, this is called reversible pulpitis। it may be acute or chronic। acute and chronic कब बोलेंगे, देखिए जब बोलेंगे acute कब बोलेंगे, जब पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर मुझे मैं जब पानी पीता हूँ तो मेरे दांत में बहुत दर्द होता है, और जब बंद कर देता हूँ पीना हो जाता है, उसमें ठीक हो जाता है। ये चीज़ एक दिन से मतलब लास्ट एक दिन या 2 दिन से हो रहा है, या कल रात ही मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो मतलब ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये मुझे हुआ था, तो हम इसे अक्यूट रिवर्सिबल पल्पाइटिस बोलेंगे। और हम क्रॉनिक कब बोलेंगे, जब पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर मुझे 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि जब मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ तो मेरे दांत में दर्द हो रहा है, और जब मैं पानी पीना ख़त्म हो जा रहा है मतलब ये पानी पीने के बाद तुरंत ही मेरा दांत ठीक हो जा रहा है, मतलब दांत में दर्द नहीं है, और ये लगातार 1 महीने से हो रहा है, तो 1 महीने 2 महीने, ठीक है, तो ये हम क्रॉनिक रिवर्सिबल पल्पाइटिस बोलेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकली हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, कॉजेस, क्या क्या कॉज हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, थर्मल शॉक हो सकता है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो सकता है, प्लेसमेंट ऑफ फ्रेश अमेलगम फिलिंग हो सकता है, इरिटेशन फ्रॉम फिलिंग हो सकता है, इरिटेशन फ्रॉम स्वीट और सोर फूड, इरिटेशन फ्रॉम बैक्टीरिया। सो 3 चीज़ जो आपको शायद नहीं पता होगा, देखिए एमलगम फिलिंग जिस दिन लगाया उसके 1-2 दिन बाद क्या होता है कि उसमें रिवर्सिबल पल्पाइटिस होता, मतलब थोड़ा सेंसिटिविटी रहता है उस दांत में, मतलब थोड़ा दर्द रहता है, तो हम उसे रिवर्सिबल पल्पाइटिस बोलते हैं। जब वुमेन दे गो थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल और वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, दे माइट फील पेन इन देयर
tooth, and this is also because of reversible pulpitis, because intrapulpal pressure तब increase हो जाता है. Okay, same जब localized vascular congestion होता है associated with common cold and sinus diseases which causes generalized transient hyperemia. तो उसके लिए pulp of the maxillary posterior teeth they might cause pain, ठीक है, और उसे भी रिवर्सिबल पल्पाइटिस ही एक एग्जाम्पल है उसका. ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स. सिम्टम्स देखिए, टॉर्ड एंड शार्प पेन lasting for a moment. The pain is specific to a stimulus and it is relieved on removal of the stimulus. Okay, ये तीन बहुत important है. अभी देखिए डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है कि कोल्ड थर्मल टेस्ट में मतलब कोल्ड थर्मल टेस्ट से हम जान सकते हैं कि ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है, बिकॉज कोल्ड स्टिमुलस से ए डेल्टा फाइबर एक्टिवेट होता है. ए डेल्टा फाइबर इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी. ये देखिए, ए डेल्टा फाइबर इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द पल्पल टिश्यू एंड इट इज़ माइलिनेटेड. तो कोई भी एयर या कोल्ड या हीट या ड्रिलिंग और प्रोबिंग से ये पेन हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये फास्ट शार्प शूटिंग एंड वेल लोकलाइज्ड होता है. ठीक है, ये रिवर्सिबल पल्पाइटिस में हम देख सकते हैं कि ये ए डेल्टा फाइबर को. और अगर सी फाइबर्स बोल के और एक फाइबर पेन रिसेप्टर्स है, वो पल्प के एकदम अंदर रहते हैं. सो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, सो वो कब कब एक्टिवेट होता है? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर से, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन से, हीट के वजह से. और इनका पेन क्या होता है कि स्लो होता है, डल होता है, लिंगरिंग होता है, पोरली लोकलाइज्ड होता है. ओके, सो सी डेल्टा फाइबर्स यूजुअली इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में सी डेल्टा फाइबर्स की वजह से हमें पेन होता है. सो what is the treatment of reversible pulpitis? It is mainly prevention. So periodic care through oral prophylaxis, brushing the teeth regularly 2 times a day, and taking good oral health care, early filling insertion, desensitization. If the gingiva, marginal gingiva has lowered and there is recession present, and वहाँ से क्या होता है कि sensitivity होता है, तो वहाँ से रिवर्सिबल पल्पाइटिस वहाँ से होता है. तो डिसेंसिटाइजेशन वहाँ का करना पड़ता है, लाइक GIC फिलिंग करते हैं वहाँ पे. एंड द यूज़ ऑफ सीमेंट बेसिस एंड कैविटी वार्निश. तो हमेशा परमानेंट रेस्टोरेशन के अंडर सीमेंट बेस या कैविटी वार्निश हम लगाते हैं, क्योंकि ताकि थर्मल डिजेनरेशन ना हो पल्प का. एंड while polishing and while tooth preparation, care must be taken. Okay, that is very important. So next we move on to irreversible pulpitis, and it is also right from Grossman. Okay, I have taken this definition from Grossman. Irreversible pulpitis is a persistent inflammatory condition of the pulp which is symptomatic or asymptomatic, and it is caused by a noxious stimuli. So here क्या होता है कि हम स्टिमुलाई रिमूव करने के बाद बहुत देर तक दर्द रहता है. ओके, दर्द रहता है, इट इज़ मतलब परसिस्टेंट दर्द रहता है. ठीक है, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. एंड एज वी सेड, इरिवर्सिबल कैन बी एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक. व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स होते हैं पेन can it may be due to hot, cold and it is spontaneous. Okay, मतलब खुद से ही दर्द शुरू हो सकता है, गरम कुछ खाने से, ठंडा कुछ खाने से. ये पेन लिंगरिंग है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, लिंगरिंग है. ओके, इट मे कम एंड गो स्पॉन्टेनियसली. शार्प हो मतलब अगर शुरू में क्या होता है, शार्प शूटिंग, पियर्सिंग एंड सीवियर पेन होता है. ठीक है, पोस्ट्यूरल पेन होता है अगर खड़े होके हम सो जाए. इंट्रापल्पल प्रेशर बढ़ जाता है, उससे पोस्ट्यूरल पेन होता है. ओके, रेडिएटिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. क्या होता है कि नीचे मैंडिबुलर मोलर्स अगर इनमें इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है तो वो रेडिएट करता है टू द रेमस ऑफ द मैंडिबल और वो सब जगह, कान, ईयर रीजन. और अगर मैक्सिलरी मोलर
पोस्टीरियर वो सब वहाँ पे इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, तो वो रेडिएट करेगा टू द साइनस रीजन एंड ऑल. ओके. इन द लेटर स्टेजेस क्या होता है, ग्नॉइंग पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन, बोरिंग पेन, देन कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ऐसा लगता है कि कांस्टेंट प्रेशर है उस दांत में. ओके. अगर हम क्लिनिकली देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि लाइट एक्सपोजर हो सकता है, वो देख सकते हैं कि पल्प थोड़ा सा एक्सपोज्ड है, या फिर पल्प के ऊपर थिन लेयर ऑफ लेदरी डीके है. ओके. नॉक्टर्नल पेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. रात को पेशेंट को दर्द होता है और बोलता है डॉक्टर साहब मैं तो रात को सो ही नहीं पाया, इतना मुझे दर्द था. तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का. और फूड लॉजमेंट, अगर वो उसी जगह पे फूड लॉज हो गया तो उसमें मतलब बहुत दर्द होता है, क्योंकि देखिए पहले तो खुला हुआ था ना, लाइक उतना ही डीके हो गया था कि पल्पल एक्सपोज हो गया था. अभी फिर से अगर फूड लॉजमेंट हो गया तो प्रेशर अंदर, इंटरपल्पल प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, तो और भी पेशेंट को वहाँ पे दर्द होगा. ओके. अभी हम यहाँ पे केस देखते हैं, ये वाला, ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है क्योंकि ये पल्प तक चला गया है ये केस, और हम वहाँ ऊपर से क्लिनिकली देख भी सकते हैं कि पल्प एक्सपोज्ड हो गया है. हम मतलब पल्पेक्टमी करके, आरसीटी करके ये फिलिंग कर देंगे. तो ये एक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का केस है. और सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक मेथड है इसे डायग्नोसिस करने का, इज़ थ्रू इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर. दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. ओके. एसिम्टोमेटिक स्टेज में क्या सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी नहीं, लिटिल और नो पेन एक्सेप्ट फूड लॉजमेंट होने से तो भयंकर दर्द होगा. मोर करंट इज़ रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट. नाउ मैं एक ये दिखाऊंगी. देखिए अगर क्लिनिकली हम पेशेंट का ऐसा एक दांत लेके आया तो क्या होगा. लाइक दांत के अंदर ये एक रेड फ्लैशी एक सॉफ्ट टिश्यू एक स्ट्रक्चर है. तो ये क्या है, और रेडियोलॉजिकली हम ऐसा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. तो इस कंडीशन का नाम है क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस. क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस. ओके. और ऑल्सो नोन एज पल्प पॉलिप इज़ अ प्रोडक्टिव pulpal inflammation due to extensive caries exposure of a young pulp. Causes क्या होता है, slow and progressive caries exposure is the cause. A large open cavity, a young resistant pulp, and a chronic low grade stimulation are necessary. तो ये पल्प पॉलिप है. ओके. एंड एज आई सेड, कैरेक्टराइज्ड किससे होता है कि ये जो पल्प पॉलिप है ना, ये जो टिश्यू है, दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रैन्युलेशन टिश्यू. ये जो पॉलीपॉइड एक टिश्यू है, ये दिस इज़ अ ग्रैन्युलेशन टिश्यू. दिस इज़ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ कवर्ड एट टाइम्स विद एन एपिथेलियम एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ लॉन्ग स्टैंडिंग लो इरिटेशन. मतलब लो इरिटेशन एक होता रहता है पेशेंट को, फिर भी वो ट्रीटमेंट के लिए अगर नहीं आया तो ऐसा एक कंडीशन अराइज हो सकता है. ये बच्चों में हम ज़्यादातर देख सकते हैं, यंग परमानेंट. ओके. सो व्हाट आर द कॉजेज? As I said earlier, a large open cavity, a young resistant pulp, and a chronic low-grade stimulus. Now, mechanical irritation, मतलब constant mechanical irritation from chewing on bacterial inflammation. This is मतलब this is the most common stimulus. Okay. So, उस बहुत बड़ा एक पॉलीपॉइड टिश्यू है और आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये पल्प पॉलिप है या जिंजाइवल पॉलिप है. तो हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट? सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक एन इंस्ट्रूमेंट एंड वेरी जेंटली वी हैव टू फाइंड द स्टॉक ऑफ दैट पॉलिप. ओके. वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है. वो अगर जिंजाइवल से ओरिजिनेट कर रहा है तो दैट इज़ अ जिंजाइवल पॉलिप, एंड अगर वो पल्प से ओरिजिनेट कर रहा है तो दैट इज़ अ पल्प पॉलिप. ओके. Very gently we have to find the stock. Now the treatment क्या है कि देखिए पल्प पॉलिप का ट्रीटमेंट ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज बहुत सारे पेशेंट दे डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट देयर टूथ. ओके. सो वी एज अ डेंटिस्ट वी शुड नो दैट व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट वी कैन प्रोवाइड.
एलिमिनेट द पॉलीपॉइड टिश्यू बाय एक्सटरप्रिटेशन. सो हम ये जो पॉलीपॉइड टिश्यू है ये जो पॉलीपॉइड टिश्यू है हमें पहले इसको हटाना पड़ेगा. कैसे? पेरियोडोंटल क्यूरेट से या स्पून एक्सकैवेटर से. फिर तो ब्लीडिंग होगा, तो ब्लीडिंग को हम प्रेशर से रोकेंगे. ओके. और उसके बाद उस पर हम टेम्परेरी एक ड्रेसिंग देंगे. टेम्परेरी ड्रेसिंग देके हम पेशेंट को बोलेंगे अगले दिन आओ. फिर पेशेंट अगले दिन आएगा. फिर जो रेडिकुलर जो पल्प है, नीचे वाला जो हिस्सा का पल्प है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे निकाल देंगे. अभी पूरा पल्प निकल गया, अभी हम उसे पल्पेक्टोमी करेंगे. ओके. मतलब उससे हम मतलब EMP करके ऑब्चुरेट करेंगे. ओके. और एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ आई थिंक दिस प्रोसीजर इज़ मोर रिकमेंडेड बिकॉज नेचुरल टूथ रखना चाहिए. नाउ अ पेशेंट हैज़ कम विद दिस कंडीशन. ये क्लिनिकली हम ऐसे देख पा रहे हैं. ठीक है. आप देख रहे हैं कि मैक्सिलरी जो एंटीरियर जो इंसाइजर है वो यहाँ पे एक पिंक कलर का स्पॉट है. पीछे भी आप देख पा रहे हैं पैलेटली एक पिंक कलर का स्पॉट है. अब रेडियोग्राफिकली देख रहे हैं कि रूट कैनाल में एक बलून जैसा एक फॉर्म हो गया, रेडियोलूसेंसी. तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ठीक है. ये पोस्टीरियर में एंड देखिए ये मैक्सिलरी एंटीरियर में हम ज़्यादातर देख सकते हैं, बट हम मतलब कोई से भी दांत में देख सकते हैं, बट मोर कॉमनली इन द मैक्सिलरी एंटीरियर. ओके. This is known as internal resorption. It is an idiopathic, slow and fast progressive resorptive process occurring in the dentine of the pulp chamber or in the root canal of the tooth. This definition is from Grossman. तो मतलब ऐसे तो ये idiopathic है. हम clinically इस spot को हम pink spot बोलते हैं. Pink spot. It is actually a granulation tissue. And कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये 1 to 2 years से भी डेवलप हो सकता है स्लोली, और फास्ट, इतना फास्ट हो सकता है कि इन अ मैटर ऑफ मंथ ये डेवलप हो गया. ओके. क्या हुआ कि स्लोली रिजॉर्प्टिव प्रोसेस है ना, स्लोली अंदर से डेंटिन रिजॉर्प्शन होना शुरू किया. ठीक है. डेंटिन रिजॉर्प्शन होना शुरू किया, और अगर ये अनट्रीटेड, क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक है, दिस फुल कंडीशन इज एसिम्टोमेटिक, और अगर ये ट्रीटमेंट टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये परफोरेट भी कर सकता है थ्रू रूट और थ्रू क्राउन. एंड इट एज आई सेड इट इज़ मैक्सिलरी एंटीरियर रीजन में ज़्यादा देख सकते हैं. और रेडियोग्राफ मतलब हम क्लिनिकली तभी डायग्नोज कर सकते हैं जब हम रेडियोग्राफ को देखेंगे. नहीं तो मतलब ठीक है, बिकॉज पेशेंट तो खुद नहीं आएगा क्योंकि इसमें पेन नहीं होता है. सो रेडियोग्राफिकली वी कैन सी ये एक केस है. यू कैन सी द रिजॉर्प्शन ऑफ द डेंटिन हियर. सो इसे हम ट्रीटमेंट करके ये गटापर्चा से फिल देख पा रहे हैं कैसे फिल कर दिया है. सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट इज़ एक्सटरप्रिटेशन. मतलब पल्प को हम जब भी निकाल देंगे तो ये रिजॉर्प्शन प्रोसेस बंद हो जाएगा. देन गटापर्चा हम ऐसे कोल्ड मेथड में नहीं कर सकते, हमें प्लास्टिसाइड्स गटापर्चा यूज़ करना पड़ेगा. और सपोज़ अगर परफोरेशन हो गया, अगर दांत का सपोज़ इसमें तो नहीं है, बट अगर परफोरेशन रूट में हो गया तो हम MTA के मदद से हम पहले एक वॉल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम प्लास्टिसाइड्स गटापर्चा से पूरा भर लेंगे. ओके. नाउ कैल्सिफिक डिजेनरेशन. अभी ये कैल्सिफिक डिजेनरेशन में ना देयर इज़ नो क्लिनिकल पेन, देयर इज़ नो क्लिनिकल मतलब कोई सिम्टम्स नहीं है. इट इज़ just know that it is a part of a pulpal tissue and it is replaced by calcific material, that is pulp stone denticles that are formed. It is present in pulp chamber. Okay. ये जो हम RCT करते हैं ना, RCT करने के टाइम हमें हार्ड टिश्यू स्ट्रक्चर्स मिलते हैं विद इन द पल्प चेम्बर, दैट मे बी पल्प स्टोन्स और डेंटिकल्स. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी pulp मतलब calcified pulp chamber is there, and while root canal treatment you can see the pulp stones here. So pulp stone and denticles, they are laminated structure, like they may be laminated structure like skin of an onion, lies unattached within the body of the pulp. The calcified material, or they may be calcified material which
कैन बी अटैच टू द वॉल ऑफ द पल्प कैविटी. दो तरह के हो सकते हैं. ओके, एक ये. नाउ the pulp stones they are normally present in more than 60% of adult tooth. 60% से भी ज़्यादा हम पल्प स्टोन मिलता है. Calcific metamorphosis. What does this mean? It means that calcific degeneration of the entire pulp space and it is a sequelae of traumatic injury. Okay, this definition viva में पूछ सकता है. What is calcific metamorphosis? Then you can see this. क्लिनिकल मैनेजमेंट. अगर देखिए, अगर एसिम्टोमेटिक टूथ है, मतलब ऐसे कोई दर्द नहीं है, ये नहीं है, तो एस्थेटिक मैनेजमेंट, दैट इज़ डिस्कलर्ड अगर टूथ है तो उसे फुल कवरेज रेस्टोरेशन या लैमिनेट रेस्टोरेशन कर सकते हैं. अगर सिम्टोमेटिक है, अगर केरीज हो गया उस दांत में, अगर दर्द कर रहा है, फिर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट इज़ थ्रू माइक्रोग्रेड्स रेट्रोग्रेड्स अप्रोच. माइक्रो सर्जरी रेट्रोग्रेड अप्रोच इज़ रिकमेंडेड. Endodontic therapy is not recommended unless the tooth is symptomatic. Okay. Now, fibrous degeneration. Fibrous degeneration is the degeneration of the pulp is characterized by replacement of the cellular elements by fibrous connective tissue. So ये कुछ भी नहीं है, like आपका कोई symptomatic कुछ भी नहीं हम देख सकते, पेन कुछ भी नहीं होता, बट जब हम पल्प को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो लेदरी फाइबर का लेदरी फाइबर जैसे हमें वो पल्प कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस करता है. ओके, this calcific degeneration, fibrous degeneration, this is actually a defense mechanism of the pulp. अगर पल्प इरिटेशन होता है पल्प को, then it undergoes such degeneration. Okay. Now, last topic of this lesson is necrosis of the pulp. Necrosis can be pulp necrobiosis, pulpal necrosis with no sign of infection, and necrosis with infected pulp. So pulp necrobiosis में क्या होता है, आधा पल्प necrosed हो जाता है और आधा पल्प acute symptomatic होता है. So there are mixed symptoms in this. Pulpal necrosis with no sign of infection क्या होता है, मतलब there is no periapical response, there is no response to pulp sensitivity test, no abnormal findings, just we can see that tooth may be discolored. Okay. Now pulp necrosis with infected pulp. अभी क्या होता है कि no pulpal related symptoms, any symptoms will be from the periapical tissue. जस्ट इन्फेक्टेड पल्प है ना, तो पेरियापाइकल टिश्यूज़ में इन्फेक्शन रहता है, तो अगर हम परकर्शन करें तो पेन कर सकता है. पेरियापाइकल रेडियोलुसेंसी हम देख सकते हैं. ओके, so this is all for today's lecture. This is my logo. Okay, Blue Morpho is my logo, and I hope you like it, and if you like it, please support me so I can make a lot of videos like this. Thank you and have a good day.